Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Sonalpreet Kaur, and if you're watching my video for the first time, please don't forget to subscribe my channel. And yes, don't forget to hit the bell icon so that you can get notifications regarding my next video. In the last video, we discussed about cell, which is the structural and the functional unit of life, and we even discussed about its components. The first component which we discussed was the plasma membrane, and in today's video, we're gonna discuss about the cytoplasm and the nucleus, which are the two other components of any cell. Before that, we're gonna discuss about the cell wall. As you can see in the diagram, this is a plant cell. So, in a plant cell, addition to the plasma membrane, as you can see, there's a cell membrane and there's a structure called the cell wall. In the plant cell, addition to the plasma membrane, there's another rigid outer covering, which is known as the cell wall. And this cell wall is made up of cellulose. Cellulose is a complex structure which has a major function in providing the strength, the stability, the rigidity to the plant. And the cell wall is even said to be the non-living component of any plant cell. It is also found in bacterial cell. In bacterial cell, the cell wall is made up of peptidoglycan, and in fungi, the cell wall is made up of chitin. It is also found in various other prokaryotic cells. Now, coming to the next topic, that is the structure of the cell wall. That is, what are the different components of the cell wall? A cell wall has three major components. The first one is the primary wall, the second is the middle lamella, and the third is the secondary wall. As you can see in the diagram, primary wall is present outside the or cell, and it is the first formed layer of the cell. The middle lamella is acting as an interface between the neighboring cells, and the secondary wall it is present inside the primary cell wall. This primary cell wall is made up of cellulose, and it is the first formed layer of any cell, and it has proteins and pectic polysaccharides. Now the second is the middle lamella. It acts as what the interface between the neighboring cells, as you have seen in the diagram also, and it is made up of pectins, and sometimes it also contains what lignin and proteins. The secondary cell wall is what it is present inside the primary cell wall, as you can see in the diagram also, and it is made up of lignin, which provides it what? Which provides it rigidity and strength. Functions of cell wall. The first major function of cell wall is to provide definite shape, strength, support, and rigidity to the plant. Then second function is protection against the mechanical stress and physical shocks, which could be in the form of rains, or you could say heavy winds, heavy rainfall, and heavy winds as well. Third, it prevents the water loss from the cell. Water loss is what, you can say that it prevents the process of transpiration, and it helps in the transportation of substances between and across the cell. Then another function is it acts as a physical barrier. Physical barrier as in like between the interior and the exterior of the cell. And the next function is helps to control what? Helps to control the cell expansion. And how does it do that? Due to its presence of elastic and plastic nature of the cell wall, it helps to control the cell expansion. And the last function is that it reacts in response to the pathogenic attack. Let's suppose we can say that there is some sort of infection, or any kind of reaction that takes place, so it activates what? The defense mechanism, and therefore prevents the entry of any pathogen. Okay, this was the cell wall, the components of the cell wall, and the functions of the cell wall. Now we're going to discuss about the second component of the cell, which is the nucleus. In the last video, we discussed about the onion peel experiment, as you can remember. So in that when जब हमने वो एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसके अंदर हमने क्या देखा था कि हमने एक एपिडर्मिस लिया था अनियन का, और उसके अंदर हमने आयोडीन सोल्यूशन ऐड किया था.
तो जैसे ही हमने आयोडीन सोल्यूशन को उसमें ऐड किया था, उसकी वजह से डिफरेंट जो पोर्शंस थे उस एपिडर्मिस के, वो अलग अलग तरीके से स्टेन हुए थे। कुछ डार्क कलर्ड स्टेन हुए थे और कुछ लाइट कलर्ड स्टेन हुए थे। एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डार्क कलर्ड हो रखे हैं और कुछ जो है लाइट कलर्ड हो रखे हैं। तो ये जो डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर्स है, ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। दीज डार्क कलर्ड स्टेन्स और स्ट्रक्चर्स आर नोन एज व्हाट? द न्यूक्लियस. We can say that nucleus is the major vital organ in any cell. हम इसको इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो सारे मेजर फंक्शंस जो होते हैं उसको कंट्रोल करके रखता है। एक न्यूक्लियस के अंदर पावर होती है कि वो सारे फंक्शंस को कर सकता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर उसके एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये डबल layered होती है। तो we can say that double membrane structure that contains the genetic material. Genetic material जो होता है वो इसका क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और स्टोर होता है। ठीक है, and the next structure we discuss is the nucleolus. Then it has even the endoplasmic reticulum, the ribosomes, and the nuclear pore. So we can say that it is the major organ which is responsible for regulating all the cellular activities that are taking place in the cell on the basis of its presence or absence. ये दो तरीके के हो सकते हैं, either prokaryotic cells or the eukaryotic cells. Prokaryotic cells वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। एक एक्सेप्शन होता है आरबीसीज का, जिसके जो कि यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं क्योंकि वो ओरिजिनेट होते हैं यूकैरियोट्स में, बट उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, अगर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर एक डबल लेयर्ड कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है डिस्टिंग्विश करना साइटोप्लाज्म को जो न्यूक्लियस का दूसरा और कंटेंट होता है उससे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। इन न्यूक्लियर पोर्स का फंक्शन होता है कि वो ट्रांसपोर्ट कर सके सब्सटेंसेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द सेल और फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है वो होती है हमारे क्रोमोसोम्स। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर जितना भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। और ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर किया जाता है। डीएनए इज व्हाट? डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब बात करते हैं क्रोमोसोम की। तो क्रोमोसोम जो होते हैं उसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और डीएनए प्रेजेंट होते हैं। डीएनए की बात करें तो इनके अंदर स्पेसिफिक फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम जीन्स बोलते हैं, जो कि मेजरली ट्रांसफर करते हैं जेनेटिक ट्रेट्स को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब इसमें एक स्ट्रक्चर और हमने देखा क्रोमैटिन। जब सेल्स डिवाइड नहीं कर रहे होते तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये are these chromosomes are found to be present in the form of chromatin, and जैसे ही सेल डिवाइड करता है उस टाइम पे ये क्रोमैटिन जो होते हैं ये ऑर्गेनाइज होके क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। अगर हम बात करें किसी भी बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियल सेल की, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो पुअरली डिफाइंड होता है क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो इसकी वजह से जो उसका पुअरली डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है उसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? Nucleolus. Okay, now next come to the important thing, that what is the major functions of nucleus. The first function of nucleus is to do what? The cell growth and reproduction. And the second important we discussed कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि किसके फॉर्म में होता है? डीएनए के फॉर्म में। न्यूक्लियस जो होता है उसमें सारे मेजर सेलुलर एक्टिविटीज होती है। उसमें से एक जो सबसे मेजर होती है वो होती है डीएनए रेप्लिकेशन। इसका एक और फंक्शन जो होता है वो होता है कि न्यूक्लियस जो होता है इट एक्ट्स एज अ साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ आरएनए, एंड another important function is that it helps in synthesis of ribosomes, and cell metabolism regulation करता है ये by synthesis of various enzymes. अगर हम बात करें कि ये साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ आरएनए कैसे करता है,
तो उसमें ये जो न्यूक्लियस होता है ये एक टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है, जिसमें ये बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो होता है उनका प्रोडक्शन करता है। तो दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। जो थर्ड मेजर कंपोनेंट होता है सेल का, वो होता है हमारा साइटोप्लाज्म। हमने जब अनियन पील का एक्सपेरिमेंट किया था तो हमने देखा था कि कुछ स्ट्रक्चर्स जो थे वो डार्क स्टेन हुए थे और कुछ स्ट्रक्चर्स जो थे वो लाइटली स्टेन्ड हुए थे। तो जो ये डार्क स्टेन जो स्ट्रक्चर्स थे ये हमने स्टडी किया, ये क्या है न्यूक्लियस, और जो ये लाइटली स्टेन्ड स्ट्रक्चर्स थे ये क्या है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। तो हम ये एक प्लांट सेल या कोई भी एनिमल सेल है, जब हम उसको स्टडी करते हैं तो हम उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं उसके अंदर कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, वो एक तरीके का फ्लूइड कंटेंट होता है जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है, एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका एक जेल लाइक अपीयरेंस आता है। जब हम इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये एक जेली सब्सटेंस है जिसके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो हैं ये एम्बेडेड हैं या फिर इसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्या इसके अंदर क्या क्या होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर वेरियस अदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका अपना अलग अलग एक फंक्शन होता है। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, वेसिकल्स प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, इसके अंदर ER है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो इन ऑर्गेनल्स को इंटैक्ट करके रखता है। और ये किससे मिलके बना हुआ होता है साइटोप्लाज्म, ये बना हुआ होता है वाटर, सॉल्ट, प्रोटीन एंड वेरियस अदर ऑर्गेनल से मिलके बना हुआ होता है हमारा क्या, साइटोप्लाज्म। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो हमने ये डिस्कस किया कि जो ये साइटोप्लाज्म होता है ये कैसा होता है, ये एक तरीके का फ्लूइड कंटेंट होता है। तो इसका जो मेजर फंक्शन होता है वो यही होता है कि ये जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर वो उनको पकड़ के रखता है अपने साथ, सो दैट वो इधर से उधर मूव नहीं करे विद इन अ सेल और एक जगह पे इंटैक्ट रहे। सेकेंड वी कैन से कि क्योंकि इसके अंदर वेरियस अदर ऑर्गेनल्स होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट वेरियस अदर प्रोसेसेस जो होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो गया साइटोप्लाज्म के अंदर, कह सकते हैं हम होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, माइटोसिस एंड मेयोसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो ये होता है कि इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स अराउंड द सेल। ट्रांसपोर्ट का काम करता है एक सेल से इधर उधर ट्रांसफर करने के लिए। लास्ट इज व्हाट इट हेल्प्स टू मेंटेन टर्जिडिटी सो दैट द सेल कैन मेंटेन देयर शेप। अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो जो सेल है वो पिचक जाएगा और वो बिल्कुल फ्लैसिड हो जाएगा। So that's all for today. Thank you so much for watching my video. And yes, आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कि सेल वॉल क्या होती है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म की स्ट्रक्चर क्या होता है, साइटोप्लाज्म के फंक्शन क्या होता है, एंड वी डिस्कस्ड अबाउट न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस जो होता है वो वाइटल ऑर्गन होता है और वेरियस अदर प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है जो कि एक सेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हमने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, हमने न्यूक्लियस जो है उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया, उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट क्लास यू कैन डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस, or you could say the MCQs or the FAQs which are asked regarding these topics. So stay tuned and yes, keep watching. Thank you.